Hello everyone. So in this videos we will learn what is the best way dealing with HTTP requests and how we should make the HTTP request in a React applications. So let's start with this. So for just replicating the scenario, I am just going to create another components. So let's just create another components here. For example, just product list. Okay, and this components does not receives anything as a props, and here we will going to return just for now product list. Okay, and now let's render this. So here if you see product list getting appeared in our browsers. So now inside product list we will going to make a http request. So so here let's import axios. Yeah, and now as we know that inside use effect we make the uh, our http request. So and as a dependency we know that we will going to provide a empty array. This is all we used to do this and everyone know this these things कि यहाँ पे हमें एम्प्टी एरे प्रोवाइड कराना है क्योंकि एक ही बार ये रिक्वेस्ट जो है वो इशू करनी है हमें. So let's do one thing. Axios dot get, my bad, yeah, axios dot get, and here we need to pass the url. So ये बेसिक urls है, पब्लिक urls है जस्ट टू डू उसको डाउनलोड्स करने के लिए आप इसको urls को यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकंड पैरामीटर्स में कुछ नहीं देना है, जस्ट हम इस रिक्वेस्ट को यहाँ से मेक करते हैं. ओके, एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग. लेट्स क्रिएट लोकल स्टेट const products. या अभी के लिए मैं कोई इंटरफेस ये सब डिफाइन नहीं करता हूँ, इसको सिंपल्स रखते हैं जितना हो सके. सो यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट्स की हमने एरे रख ली जिसमें एम्प्टी एरे हमने सिंपली असाइन करा दिया. ये हमारी एच रिक्वेस्ट जाएगी. अगर यहाँ पे एच रिक्वेस्ट अगर आप देखें तो ये एच रिक्वेस्ट यहाँ जा रही है. प्रीव्यूज में अगर डेटा देखें तो इस तरीके से ये डेटा रिसीव कर रही है. ओके, जस्ट एक एरे है. inside array we will going to have approx 100 objects, and this is how every objects will going to contain completed id, titles and user id. Okay, so now let's do one thing. So here dot then, okay, so here we will going to receive response. ओके, सो लेट्स यहाँ पे हम इनको स्टोर कर लेते हैं रेस्पॉन्स से आइटरेट करके रेस्पॉन्स डॉट डेटा. ओके, यहाँ पे जो है ये एज अ एरे एक्सपोज है डेटा पर, ये हमें कंप्लीट अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएगा. इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट में सिंपल जैसा हम यूजली करते हैं प्रोडक्ट्स डॉट मैप. ओके, इट विल गोइंग टू गिव one product here, and from here we will going to render one div. So here let's print for now product dot title. So if you see here we have a title. Okay, product dot titles, and here we will going to select key as a product dot id for now. Okay, so let's save this, and it will going to give the error as we are using a TypeScript. So now let's do one thing. Let's create a interface product. Every product will going to completed will going to contain a completed, which is a boolean, and after that we have a id which is type of a string. Okay, it's a number, and after that we have a title. Just bear with me. Once I will set up each and everything, so after that we will discuss ki what is the right way of making a HTTP request, and user ID is also the numbers.
So this is the format of every product. So now here just define this, it will going to type of a array like this. Okay, so now it will not going to give us the errors. So now if you see on UI, we will going to have the list of products here. Okay, so it's good, this is all we need here. So this is the product list, and this is how we are making the Axios request. Okay, and this request will going to be happen only one times, because in dependency we have not provided anything, and we know that अगर ये empty dependency अगर empty रहता है तो ये request जो ये functions है जो हमने use effects को पास किया है, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स को अपना सेट कर लेते हैं। ओके, तो ये है जनरल स्ट्रक्चर जिस तरीके से हम अपना एपीआईज बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स लेट्स डू वन थिंग, कि यहाँ पे एक अनदर हम प्रॉपर्टी रख लेते हैं जो मुझे रेप्लिकेट करना है, उसके लिए सेट टॉगल। ओके, यूज स्टेट एंड ओके, सो नाउ okay, if this toggle is true, then render this product list, otherwise we will not going to render this. So here I will going to implement one button. So here just do this toggle, and here we will going to have on click, and it will going to just toggle. Okay, so let's call this set toggle, and whatever value we have inside prev. Okay, so we just going to return from here, return just negation of this prev. This is all we need to do for toggling. So now here if you see we have okay, let's do one thing. Yeah, so now let's move your focus here. So if you see, let me clear this. Yeah, so if I click on this toggles, that element that product list is hide. Okay, if I click on this toggles again, so that product list will going to be rendered here, if you see here, and this call will going to be issue. Okay, सो अपना जो फोकस है वो यहाँ पे सिंपली इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं आप लोग, कि यहाँ एक जस्ट एक बटन्स है जिसमें जिसके जिसके थ्रू हम जस्ट इस प्रोडक्ट लिस्ट को हाइड एंड रेंडर्स कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं ये इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जहाँ पे ये रेंडर हो रहा है, मैंने टॉगल्स पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट लिस्ट को हाइड कर दिया। ओके, मैंने फिर से टॉगल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये कॉल गई टू डूज लिस्ट की, और टू डूज हमें गेट मिले और इसने यहाँ पे ये रेंडर कर दिया टू डूज को। ओके, सो जस्ट थिंक लाइक दैट, इफ आई क्लिक ऑन टॉगल्स एंड क्विकली, ओके लेट मी डू वन थिंग। ओके, जस्ट आप इस पे फोकस मूव करें, मैंने टॉगल ऑफ कर दिया, लिस्ट हाइड कर दी, मैंने फिर से टॉगल किया, फिर से टॉगल कर दिया। ओके, तो यहाँ आप अगर देखोगे तो हमने जस्ट से टॉगल किया, प्रोडक्ट लिस्ट रेंडर हो रहा था, रेंडर होते समय एक रिक्वेस्ट गई, फिर हमने साथ ही के साथ उस जो कंपोनेंट्स है जिसमें हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट की उसको जस्ट हाइड कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया उस कंपोनेंट्स को। सो बेसिकली यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो कंटिन्यूस होगी अपनी, इस रिक्वेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है जिस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, चाहे वो प्रोडक्ट जो लिस्ट थी हमारी व्यू में दिख रही है या नहीं दिख रही है, जस्ट रेंडर होने के बाद साथ ही साथ अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आइडियली इस रिक्वेस्ट के डेटा में अब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये जो कॉल कंप्लीट होगी इसके डेटा को रिसीव करने के लिए कोई कंपोनेंट कुछ है ही नहीं। तो इन आइडियल सिनारियो जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट अगर यहाँ से डिस्ट्रॉय होता है तो आइडियली होना क्या चाहिए कि जो ये टू डू लिस्ट, जो टू डूज की जो ये कॉल्स गई है वो कैंसिल हो जानी चाहिए। इसको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, आप इसको थोड़ा सा देखें। इसको वेटर करने के लिए मैं थ्रॉटलिक्स में स्लो 3G कर लेता हूँ, अब थोड़ा सही दिखेगा। तो मैंने टॉगल्स पे क्लिक किया, फिर से मैंने टॉगल ऑफ कर दिया। ओके, तो यहाँ टॉगल वाला जो टॉगल करते ही प्रोडक्ट लिस्ट को हमने रेंडर किया था, रेंडर करने के बाद फिर से उसको डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होता है तो देखिए ये कॉल फिर भी जा रही हैं, जबकि इन कॉल्स को यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए था। ये एक बेस्ट वे है। ओके, सो इस तरह का बिहेवियर अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा इधर, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो अभी हमें क्या करना है
कि अबॉर्ट सिग्नल्स होते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट्स में देखोगे तो अबॉर्ट सिग्नल्स को अगर हम प्रोवाइड करा देते हैं एज अ टोकन अपनी जिसकी थ्रू अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनरली ये एक्सियोस बिहाइंड द सीन फैच को ही यूज़ कर रहा है जो नेटिव एपीआई है। तो अबॉर्ट सिग्नल्स के थ्रू हम इसको अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे ये डिस्ट्रॉय होगा तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डिस्ट्रॉय होता है। तो यूज इफेक्ट्स में से अगर जो फंक्शंस हम रिटर्न करते हैं, ये जो फंक्शंस है एक क्लीनअप फंक्शन होता है। ओके, ये एक क्लीनअप फंक्शन है। जैसे ही हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है तो ये वाला जो फंक्शंस है वो कॉल होता है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, क्लीनअप, ठीक। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कंसोल क्लियर। अब देखिए टॉगल, टॉगल ऑफ। अब देखोगे तो यहाँ क्लीनअप कॉल हुआ अपना। ओके, जैसे ही हम इसको रेंडर और डी रेंडर, जैसे जैसे ये रेंडर्स होता है और जब इसका डिस्ट्रॉय होता है डॉम से जो प्रोडक्ट लिस्ट है, तो अपना ये क्लीनअप फंक्शंस कॉल होने वाला है। तो इन क्लीनअप फंक्शंस में हम जो हमारी अगर कोई करंट रिक्वेस्ट अगर ऑन गोइंग है और कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको हम कैंसल्स करेंगे। अब कैंसिल किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। पहले हमें एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। ओके, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस, एक्सियोस डॉट 1 minute, या एक्सियोस डॉट कैंसल, कैंसल टोकन्स डॉट टोकन, सॉरी डॉट सोर्स, माय बैड, या। तो सोर्स एक फंक्शन है। पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप्स, हम एक्सियोस जो इंस्टांस हमने इंपोर्ट किया है डॉट कैंसल टोकन डॉट सोर्स एक फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है ये कैंसल टोकन सोर्स का ऑब्जेक्ट्स हमें मिल जाएगा। ओके, जिसका जो टाइप है वो कैंसल टोकन सोर्स है। ओके, तो जैसे ही हमें ये यहाँ पे मिल जाता है, ये जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट है, सो जो इसका लास्ट आर्गूमेंट्स रहेगा, फर्स्ट ये जो है एज आर्गूमेंट्स में अपना सिंपल ये लेगी URLs, एंड सेकंड्स जो है एक ऑब्जेक्ट्स रहता है, तो इसको ओपन्स करना है। और यहाँ पे एज अ सोर्स, एक्चुअल API में एज अ सोर्स होता है माय बैड, पर इन एक्सियोस में ये कैंसल्स टोकन होता है। ओके, सो यहाँ कैंसल टोकन्स में हमें देना है प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डॉट टोकन। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको अगर आप देखोगे तो एक्सियोस रिक्वेस्ट में यहाँ से हमने एक कैंसल्स टोकन्स प्रोवाइड करा दिया। पहले हमने कैंसल्स टोकन्स जो है क्रिएट कर लिया एक्सियोस की हेल्प से, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट में कैंसल्स टोकन्स में हमने अपना टोकन्स जो है प्रोडक्ट रिक्वेस्ट के लिए प्रोवाइड करा दिया। ओके, सो क्लीनअप में हमें क्या करना है, क्लीनअप में सिंपल प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डॉट कैंसल। ओके, जो ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जो है उस पर एक कैंसल्स फंक्शंस होगा, तो यहाँ पे हमें क्लीनअप के टाइम पे कैंसिल कर लेना है। अगर ये रिक्वेस्ट ऑनगोइंग हुई तो जो कैंसल्स है उसको कैंसिल कर देगा कि अब इसके डेटा में इंटरेस्ट नहीं है, इसके वेट मत कीजिए, और जो रिसोर्सेज एलोकेटेड है उनको फ्री कीजिए और इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करिए। ओके, अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इनिशियल स्टेट में, जिससे सब चीज़ क्लियर हो। ओके, सो ये अपना रेंडर हो चुका है, यहाँ पे क्लीनअप कर लिया हमने। ठीक, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको अभी के लिए इग्नोर करें, इस पर फोकस ना करें। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया इधर से। अब देखो फिर से टॉगल करते हैं अपना। सबसे पहले नेटवर्क टैब में चलते हैं, नेटवर्क टैब में जाके ये क्लियर एंड स्लो 3G सेलेक्ट करते हैं, जिससे हम ठीक से चीज़ों को देख पाएँ, अदरवाइज़ ये बहुत क्विकली डाउनलोड करके रेंडर करा देगा। सबसे पहला काम टॉगल किया, तो कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सब क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसको टॉगल ऑन करता हूँ, टॉगल ऑन करते ही रिक्वेस्ट गई, फिर मैंने टॉगल ऑफ कर दिया। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे ये टॉगल ऑफ किया है, तो अगर इन रिक्वेस्ट को अगर यहाँ पे हम जाके देखें तो ये रिक्वेस्ट जो हैं कैंसल्स हो चुकी हैं। ओके, अगर यहाँ अगर आप देखोगे, सो सब चीज़ यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस टॉगल्स पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि अपनी रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट गई, फिर मैंने जैसे ही इस पर टॉगल ऑफ किया, टॉगल ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगा, तो जब तक डेटा आ चुका था। अगर यहाँ आप देखोगे तो डेटा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है प्री में। फिर से इसको कैंसिल करते हैं,
मैंने टॉगल ऑन किया, साथ ही के साथ टॉगल ऑफ कर दिया, तो देखें कि जो लास्ट रिक्वेस्ट जो सक्सेसफुल हुई थी वो कंप्लीटली कैंसिल हो चुकी है। तो अभी के लिए इसको कोई भी डेटा ये डाउनलोड नहीं करेगी। साथ ही के साथ जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रिक्वेस्ट थी हमारी कैंसिल्स हो चुकी है। होप कि आपको ये समझ में आया हो। आई रियली एनकरेज यू कि आप जैसे नेक्स्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट्स में अगर एक्सियोस एच टी पी रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट्स करने, तो ये मेक श्योर करना है कि जब क्लीन अप होगा तो उसको जो कैंसल टोकन है उसको आप कॉल करें। जिससे क्या है कि जो हम रिसोर्सेज को थोड़ा थोड़ा सेव कर सकते हैं, इससे एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू।